Hello, my dear students. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. We have started with the chapter of class 10th, Mathematics, chapter number 4, Linear Inequations. The previous lectures for this chapter are already uploaded and are arranged in a separate playlist with the name Linear Inequations. So watch those previous recordings and then continue with this lecture. We have done exercise 4A from Concise. And now we are proceeding further. Today, I will be starting with this topic, representation of the solution on the number line, a very important topic. So let us start this topic. I will explain this with the help of some examples. Okay. Suppose we have a solution set. Write down the solution set. And this solution set given is in set builder form. Let us write, what is it? X such that X is greater than equal to 4 and X belongs to real numbers. So this solution set is something which you are acquainted with. You know what is the meaning of this solution set, isn't it? Because we have discussed this in the previous lectures for this chapter. So this is telling us that all those values which are of course real numbers and are greater than 4 or equal to 4 are included in X. Means X का value क्या क्या हो सकता है? X के values वो numbers हो सकते हैं जो कि obviously real numbers होंगे और साथ ही साथ इस condition को fulfill करता है. 4 से ज्यादा या 4 से equal हो सकता है. Of course real numbers. So since real numbers है, replacement set is real numbers. So we have discussed that we cannot represent it in roster form. तो इसीलिए ये solution set तुम्हें दिया गया है set builder notation में. Now we have to translate this solution set into a number line. Means we have to represent this solution in the number line. How do we draw it? अब देखो, तो मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है? Just don't watch it. Take your notebook, take your pencil, ruler, scale and eraser, everything that is required. और मेरे साथ साथ अब इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पेंसिल उठा लो. नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए. तो पेंसिल लो एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. ठीक है? इस तरह का एक लाइन बनाओ. दोनों तरफ इस तरह से एरोज बना दो. बी वेरी केयरफुल, जो जो मैं बोल रहा हूं वो करना है. एरोज बनाना जरूरी है. नाउ यू सी वी हैव टू शो 4 एंड ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 4. तो यहां पे कहीं 4 को शो करो सबसे पहले, बिकॉज वी हैव टू शो 4 एंड ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 4. 4 से जो लेसर वैल्यूज हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सेट बिकॉज इट सेज क्लियरली x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. लेकिन नंबर लाइन में हमें वो भी वैल्यूज को शो करना चाहिए जो 4 के लेफ्ट साइड में भी है, मींस लेस देन 4 भी है. तो आई विल शो 3 आल्सो. 4 के लेफ्ट साइड में 3 है नंबर लाइन में, ठीक है? इधर फिर 2 है एंड इफ स्पेस इज देयर यू कैन आल्सो शो 1. ठीक है? तो मैंने यहाँ 3 2 1 शो किया. इफ इन योर नंबर लाइन इफ यू हैव सम मोर स्पेस फॉर द 0 आल्सो यू कैन शो 0. वैसे हमें 2 3 दिखाना ही काफी रहता है. जो हमारे जहां से हमें स्टार्ट करना है उससे लेफ्ट साइड के 2 या 3 एक्स्ट्रा शो करना एनफ होता है. तो मैंने 4 को तो शो किया, 3 2 1 भी शो कर दिया. तुम अगर 0 फिर -1 शो करोगे तो भी करेक्ट है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. या फिर सिर्फ 2 तक शो करोगे, 1 को शो नहीं करोगे तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इस साइड ड्रॉ करेंगे. वी विल ड्रॉ 5 6 7 8 9. If your number line is small, you can keep up to that value where the number line is ending. मेरा लाइन थोड़ा लंबा है, हो सकता है कि तुम्हारा लाइन थोड़ा छोटा तुमने ड्रॉ किया और यहीं पे एंड हो गया है 9 तक. नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टॉप ओवर देयर. मेरा अभी भी थोड़ा बड़ा है, सो आई विल शो 10 एंड 11. अगर तुम्हारा नंबर लाइन और बड़ा है यू कैन शो फर्दर 13 14. जहां तक तुम्हें दिख रहा है वो कर सकते हो, ठीक है? So now 4 is included in the solution set. Tell me yes or no. जोर से बोलो. 4 is included. Yes, 4 is included. Why? Because there is an equal to sign. तो 4 अगर included है तो वहां पर 4 के ऊपर एक डार्क सर्कल बनाना, वो भी पेंसिल से, ठीक है? You will draw a dark circle with a pencil.
just in the way I have drawn. Now, all the values which are greater than 4 are part of the solution set. तो क्या करोगे? और all the values till infinity. इसीलिए हम यहां ये सारे वैल्यूज 5, 6 ये सब तो इंक्लूडेड है, 4 और 5 के बीच में भी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सॉल्यूशन सेट के पार्ट है, क्योंकि वो सारे रियल नंबर्स है और 4 से ज्यादा है. हाउ डू वी डू इट? नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस नंबर लाइन और थोड़ा सा ही ऊपर देखो ऐसे इस तरह का एक लाइन बनाओ जो नंबर लाइन के पैरेलल हो और जरा सा ऊपर में, दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड इट शुड टच टुवर्ड्स टू द एरो. ये देखो एरो में जाके ये टच किया, इट टच्ड द एरो, इट सिग्निफाइज दैट ये आगे भी चलेगा इंफिनिटी तक ये जा रहा है. तो जहां तक हमने एरो बनाया है वहां तक इस पैरेलल लाइन को टच कर दो, एंड देन यू शेड द एंटायर थिंग विथ पेंसिल. ये पूरा अंदर में आराम से शेड करो पूरे इत्मीनान से, so that it does not come out of these lines. हाँ, देखने से सुंदर लगना चाहिए, अच्छे से बड़े प्यार से इसको शेड करो. देखो मैंने कैसे शेड किया, and now it looks good. And this thing you have to do with pencil only, not pen at all. तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? All values which are greater than 4, and 4 is also included. How do we know 4 is included? Because we have drawn a dark circle over here, a solid circle over here. ठीक है? This is the solution set for the given solution. अब मैं एक बार कुछ चीजों को ध्यान से देखना कि ये जो मैंने नंबर्स लिखा है दे आर इक्विडिस्टेंट. हर एक नंबर इक्विडिस्टेंट है, इस बात का ध्यान देना. एंड मैंने स्केल से मेजर करके इक्विडिस्टेंट नहीं बनाया है, अंदाजा देखकर मोटा मोटी लगना चाहिए इक्विडिस्टेंट है. अगर तुम नंबर लाइन ऐसे बनाते हो एंड यू प्लॉट नंबर्स लाइक 4 ओवर हियर, 5 ओवर हियर एंड 6 ओवर हियर, 7 over here, 3 over here, 2 over here, 1 over here. This is wrong. देखने से ही लग रहा है you see this distance and this distance, they are not same. So you will not get marks in that way. It should look good. कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे फटाफट तुम लोग सोचो और माइंड में ही मुझे आंसर करो, और फिर मैं आंसर करूंगा, देखना तुमने वो आंसर दे पाया कि नहीं. Why did we draw this with a solid circle? My question is this: why a solid circle? Solid circle on 4 means 4 is included in the solution set. Since you see there is an equal to sign, so 4 भी included है and all values greater than 4. इसलिए हमने 4 को include किया है. अगर यहाँ equal to sign नहीं होता, सिर्फ होता x greater than 4, means all values greater than 4, but 4 is not included. उस केस में हम यहां हॉलो सर्कल बनाते. वंस अगेन, अगर 4 इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ x ग्रेटर देन 4 होता, इक्वल टू साइन नहीं होता, तो यहां पे हम हॉलो सर्कल बनाते. एवरीथिंग एल्स वुड हैव बीन सेम एक्सेप्ट फॉर दैट हियर वी वुड हैव ड्रॉन अ हॉलो सर्कल इंस्टेड ऑफ अ डार्क सर्कल. ठीक है? तो समझ में आ रहा है हॉलो सर्कल कब बनाएंगे, डार्क सर्कल कब बनाएंगे. ठीक है? तो इसका सोल्यूशन सेट में बस इतना ही चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. नेक्स्ट एक क्वेश्चन में उठाता हूं, अनदर एग्जांपल. मैं एग्जांपल से कुछ समझाऊंगा, तुम्हें कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी. अगर हमारा सोल्यूशन सेट कुछ ऐसा है, x such that x is less than -3 and x belongs to real numbers. यहां पे भी रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं. इस बार थोड़ा छोटा मैंने बनाया in comparison to the first one. We have to show -3 and all values less than -3. तो मैं यहां समवेयर यहां पे -3 बना रहा हूं. ठीक है? -3 के all values less, तो यहां पे इक्विडिस्टेंट पर मैं बना रहा हूं -4, -5, -6, -7,
-8 -9 इतना काफी है। एंड -3 के राइट साइड में ग्रेटर जस्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या है, -2, यहाँ पे हम -1, और अगर स्पेस है तुम्हारा उधर यू कैन ड्रॉ 0 एज वेल, 0 1 2 जो भी जैसा तुम्हें अगर स्पेस दिखे। हमें -3 से मतलब है मेरा ये नंबर है, और इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में भी हमने वैल्यूज डाल दिया। ठीक है, वी हैव टू नाउ शो -3 से जो भी वैल्यूज लेस है, x इज लेस देन -3। -3 इज इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, मन में बोलो, मैं सुन लूंगा तुम्हारा आंसर। इज -3 इंक्लूडेड? आंसर मैंने सुन लिया, तुम लोगों ने बोला नो सर, -3 इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है। तो -3 इज नॉट इंक्लूडेड मीन्स वी विल ड्रॉ अ हॉलो सर्कल ऑन -3। -3 को हमने इंक्लूड नहीं किया। जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 इंक्लूड किया था तो हमने 4 पर डार्क सर्कल बनाया था, यहाँ पे -3 इंक्लूड नहीं किया। ऑल वैल्यूज लेस देन -3, तो इसके ऊपर फिर वैसे ही हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर हमें क्या करना है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, ऐसे जैसा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, उसको फिर कलर कर देना। एंड यू सी दैट इट इज गोइंग टिल द एरो हेड, बिकॉज इंफिनिटी तक, all values less than -3 till -infinity, they are in the solution set. So I hope you have understood the logic behind dark circle and hollow circle. Now next example, if we have a solution set which is x such that -2 less than x less than equal to 4 and x belongs to इंटीजर्स, z इज इंटीजर। ठीक है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं। नाउ वी आर डूइंग एग्जांपल 3। ध्यान से देखो, इस बार हमारा x इंटीजर है, और वैसे तो हम इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज सिंस x इज इंटीजर एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म ऑल्सो। कोई अगर तुमको बोले कि कन्वर्ट दिस सोल्यूशन सेट, जो कि यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? ऐसे लिखोगे दैट ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू 4, दे आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट, एंड वो होने चाहिए इंटीजर्स। तो इसको हम कर सकते हैं -2 से इमीडिएटली ग्रेटर कौन सा इंटीजर है, -1, देन 0, देन 1, 2, 3 and 4 is also included, क्योंकि ये equal to 4, less than equal to 4। हमने -2 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं था। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम -1। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। वैसे हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में आंसर तो नहीं करना है, हमें करना है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, लेकिन मैंने फिर भी रोस्टर फॉर्म में कर दिया। सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब मैं नंबर लाइन में करता हूं, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहां पे ये सब चीज तुम्हें पेंसिल से करना है। ठीक है, यहां पे हमें इन वैल्यूज को शो करना है नंबर लाइन में। सो लेट मी ड्रॉ अ फ्यू ऑफ देम। 1, और देखो 1 2 3 4 तो हमें शो करना ही है, लेकिन अ फ्यू एक्स्ट्रा ऑल्सो वी हैव टू शो। 3 4 कर दिया, 5 नंबर लाइन में शो किया, 6 मे बी 7 भी कर दिया शायद, अगर जगह है तो कर दिया, नहीं जगह है तो जहां तक जगह है करना है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, रिक्वायर्ड आंसर से एक्स्ट्रा होना चाहिए। यू हैव टू शो सम एक्स्ट्रा वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। जैसे मैंने यहां पे देखो लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा शो किया, इधर हमें राइट साइड में एक्स्ट्रा शो किया, और इधर भी हमने 4 तक है, बट आई हैव शोन 5 6 7 ऑल्सो। ओवर दिस साइड आई विल ड्रॉ 0, देन यू हैव -1, देन यू हैव -2 and -3। you see these are extra, they are not the part of solution set। अब यहां पे we don't have to choose all the values between the two integers। देखो यहां पे पिछले वाले जो 2 क्वेश्चंस हमने किया था वो थे x belongs to real number। रियल नंबर्स में क्या था कि इवन द वैल्यूज विच आर लाइंग बिटवीन टू इंटीजर्स, ये मैं जो बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज की बात कर रहा हूं, बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यूज है, they were also included in the solution set, so we did it in this manner। पूरा लाइन ड्रॉ करके उसको डार्कन किया। लेकिन यहां पे हमें सोल्यूशन सेट में सिर्फ -1 को शो करना है, तो सिर्फ -1 पे एक डार्क सर्कल बनाओ।
फिर 0 को शो करना है, 0 को डार्क सर्कल बनाओ। ये जो 0 और 1 -1 के बीच के जो वैल्यूज हैं, they are not integers, hence they are not part of the solution set, so we are not drawing a complete line, a darkened line on them, unlike the previous two questions. Similarly, now we will also do it on 1, because 1 is also there, 2 is also there, 3 is also there, 4 is also there, just this much. इससे हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यूज हैं, ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज क्लियर हो गया, इस तरह से जब हम डार्क करते हैं लाइन को, ये तभी हम करेंगे और तभी करेंगे जब ये हमारा रियल नंबर्स होता है, मींस ऑल द वैल्यूज बिटवीन एनी टू इंटीजर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स। लेकिन इंटीजर जब बोलेगा या होल नंबर जब बोलेगा, नेचुरल नंबर जब बोलेगा, then obviously those fractional values are none of them, neither a whole number nor an integer nor real numbers nor natural numbers. तो फिर हमें वहां इस तरह से discrete values को show करना पड़ता है, ठीक है। Let us take another question, another example. Say it is given that the solution set is this. Say I'm taking the same question, x such that -2 less than x less than equal to 4, देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, and x belongs to इस बार रियल नंबर कर दिया। कंपेयर बोथ ऑफ देम, बोथ आर सेम इन ऑल वेज एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो ऊपर वाला तुम्हारा इंटीजर था, नीचे वाला रियल नंबर है। जैसे ही रियल नंबर है, तुम्हें हर वैल्यू को शो करना है, और इसको फिर हम इस तरह से तो नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, because it is real number, we cannot write in roster form. How we will do it? We will draw the number line first of all, and then plot the values in the same way as we did it in the previous question. Okay, so say 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे मैं 7 का स्पेस नहीं है, so let it be till 6. हमें तो 4 तक तो शो करना है, उससे एक्स्ट्रा तो हमने बना ही दिया है 5 and 6, सो नो वरीज। यहाँ पे हमें 0 0 इधर करता हूं, 0 -1 -2 और एक्स्ट्रा हमें शो करना पड़ेगा, इसलिए हमें स्पेस थोड़ा बढ़ाना है। अगर एक्स्ट्रा नहीं शो किया, इसका मीनिंग कुछ और निकलता है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। इफ यू डोंट शो एक्स्ट्रा, व्हाई इट इज रॉन्ग। -2 तक तो हमें नंबर लाइन में है ही, हमें एक्स्ट्रा -3 और एक मैं कर देता हूं -4 एक्स्ट्रा शो कर दिया। नाउ हियर यू सी -2 is not included, so we will put a hollow dot on -2. 4 is included, so we will put a solid dot on 4. और ये जितने भी वैल्यूज है -2 से स्टार्ट होकर 4 में, ऑब्वियसली -2 is not included, so we have put a hollow dot over here. उन सारे वैल्यूज को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, एंड सिंस रियल नंबर है तो वी विल darken the number line. So what is the meaning of this? That all those values which lie between -2 and 4 are the part of the solution. -2 is not included because there is a hollow space, hollow circle. 4 is included because there is a complete circle on it, and that is only written over here. -2 is not included, 4 is included. तो देखो क्वेश्चन इसका और इसका सेम था, except for the fact that the replacement set in the first wala, means in the ऊपर वाला was z integer, but here it was real numbers. तो दोनों का देखो solution set on the number line looks so different, so different. ठीक है, this is how we do. एक चीज तुमने गौर किया चिल्ड्रेन, have you noticed that here we have put a hollow dot on -2 but here -2 पर कोई hollow dot नहीं था, क्योंकि यहाँ हमने discrete values को show करना था, तो हम -2 से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ हम discrete values नहीं show कर सकते, we have to show the entire thing. So all those values which are, you know, immediately greater than -2 is not included, but -2 से just ज्यादा के values, means यहाँ पे -2 से just ज्यादा जो value है वो value भी included है,
minus यहाँ पे all those values which are present in this range we have to show. How do we do it? So we have to draw the line over here, and where it is starting from? It is starting from -2. And hollow circle means -2 is not included, but all values immediately greater than -2 are included. So to represent that, we have to start from -2 only and putting a hollow dot. और अगर यहाँ पे -2 को इंक्लूड कर लिया होता तो फिर हम वहां पे ऑब्वियसली सॉलिड डॉट बनाते, लेकिन यहाँ इंक्लूड नहीं है तो हॉलो डॉट बना दिया. नेक्स्ट, आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर. अब हम बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन. से सॉल्यूशन सेट इज लाइक दिस, x such that -3 less than equal to x less than 3 and x belongs to whole numbers. अच्छा, ये जो सिंबल है दिस इज सिमिलर टू एंड, तो इससे इसको देखकर घबरा मत जाना, ठीक है. अब देखो ये होल नंबर है, रिप्लेसमेंट सेट इज होल नंबर, hence we can convert this solution set in roster form also. And if we convert it in roster form, how do we do it? All values which are greater than -3 and also equal to -3 but less than 3 and are whole numbers are the part of the solution. ठीक है? So greater than -3, so -3 से हम start करेंगे because it is also equal to -3. So -3 is included. Then उसके just immediately next value -2, -1, 0, 1, 2. 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज x लेस देन 3 लिखा हुआ है. ऑल वैल्यूज लेस देन 3, 3 इज नॉट इंक्लूडेड. इक्वल टू साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, सो 3 इज नॉट इंक्लूडेड. दिस इज द सॉल्यूशन सेट. सी होल नंबर था इसलिए हमने किया. किसी भी दो इंटीजर्स के बीच के जो वैल्यूज हैं, जैसे 1 और 2 के बीच के जो वैल्यूज हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन सेट. 1 इज देयर, 2 इज देयर, because whole numbers are only to be selected. अब बात है कि ये गलत हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो ये सॉल्यूशन सेट होता. We have whole numbers, ठीक है. So यहाँ पे whole numbers are 0, 1 and 2. So we have to remove -1, -2 and -3. I hope this is clear why we have removed the negative numbers, because solutions replacement set था only whole numbers. अगर यहाँ पे इंटीजर्स रहता, z लिखा हुआ होता या i होता, तो हमें वो सारे नंबर्स जो हमने लिखा था उनको भी इंक्लूड करना होता. अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होता, देन वी वुड हैव इवन कैंसल्ड दी 0 ऑल्सो, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो होल नंबर है 0, 1, 2. अब नंबर लाइन बनाएंगे, बड़े प्यार से बनाएंगे, एंड वी हैव टू ओनली शो द डिस्क्रीट वैल्यूज 0, 1 and 2. सो 0, 1 and 2, 0, 1 and 2. एक्स्ट्रा शो करना जरूरी है, एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा ऑल्सो यू हैव टू शो. तो मैंने 3 को शो किया. इधर भी हमें काफी सारा एक्स्ट्रा बना सकते हैं, मैंने 2 एक्स्ट्रा दिखा दिया, -1 and -2. वी हैव टू शो 0, 1 and 2 बड़े प्यार से. तो 0 पे एक सॉलिड, 1 पे सॉलिड, और इधर हम 2 पे भी सॉलिड. सॉलिड सर्कल, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा यहाँ पे तुमको सर्कल्स नहीं बनाना है. डन, डनाडन, डन. वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. अच्छा, कोई बंदा अगर ऐसा बना दे, एक्स्ट्रा न दिखाए. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं. इफ आई डोंट शो सम एक्स्ट्रा वैल्यूज, लाइक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 3 को दिखाया, वो ना करके कोई बच्चा ऐसा बनाता है 0, 1, 2 और एक्स्ट्रा शो नहीं किया. इधर उसने एक्स्ट्रा शो किया, मान लो -1, -2, -3. उसने x पे डार्क डॉट दिया, 1 पे डार्क डॉट दिया, 2 पे डार्क डॉट दिया. एंड इफ ही थिंक्स दैट बोथ ऑफ देम कन्वे द सेम मीनिंग, देन नो, बोथ ऑफ देम दे आर नॉट द सेम. दे कन्वे 2 डिफरेंट मीनिंग्स, एंड इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी इस सॉल्यूशन सेट का आंसर नहीं है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? If no extra value is shown, इसका मतलब क्या निकलता है? देखने से तो लग रहा है दोनों सेम है, क्या प्रॉब्लम है?
सेकंड वाले में अब ध्यान से सुनो, ये प्रॉब्लम है दैट इफ यू डोंट पुट एनी एक्स्ट्रा वैल्यू एंड इमीडिएटली तुम्हारा जहां जिस नंबर के बाद डार्क सर्कल है उसके बाद अगर एरो है, it means that these values are going till infinity. It means that all those discrete numbers till infinity are included in the solution. इसका मतलब है कि 2 के बाद 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, 7 भी इंक्लूडेड है, 8 भी, टिल इंफिनिटी, टिल पॉजिटिव इंफिनिटी, ऑल दोज डिस्क्रीट नंबर्स, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा शो नहीं किया। लेकिन यहां पे तुमने एक्स्ट्रा शो करके बता दिया है कि नो, इट हैज नॉट टेकन द वैल्यू 3। ये 0, 1 एंड 2 को करके यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये यहीं पे स्टॉप हो गया है, 2 पर ये स्टॉप हो गया है। लेकिन यहां पे तुमने 2 पर देकर अगला वैल्यू को नहीं शो किया है, तो इट कन्वेज दैट ये आगे भी चलता जाएगा। सिमिलरली इफ यू डू इट इन दिस वे ऑल्सो इट इज रॉन्ग। जैसे ये गलत है और ये भी गलत है कि यहां पे अगर तुम करते हो लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड यू सी तुमने 0 पे ऑब्वियसली सॉलिड डॉट दिया, 1 पे ऑल्सो सॉलिड डॉट दिया एंड 2 पे सॉलिड डॉट दिया। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि 0, 1, 2 तो इंक्लूडेड है यहां पे भी, बट इट ऑल्सो कन्वेज another meaning, wrong meaning. It means that 2 पर तो ये end जरूर हो गया क्योंकि 3 and 4 and 5 are not shown, but over this side you have not shown any extra value. On the left side this time you have not shown any extra value. What does it mean? कि ये minus infinity तक ये सारे values को include किया है, ये माइनस इंफिनिटी तक इंक्लूड किया है। जैसे पिछले वाले में ये प्लस इंफिनिटी तक चल रहा था, इसका अब इस साइड तुमने एक्स्ट्रा नहीं शो किया, तो ये 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6 करते करते हर एक इंटीजर को ये कंसिडर कर लेगा और इसका मीनिंग पूरा गलत हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक इसका मीनिंग हो जाएगा एंड इट इज रॉन्ग। तो जब भी इंफिनिटी तक हमें शो करना है तब हम ऐसा करते हैं, तब हम इस तरह से करते हैं। लेकिन जब इंफिनिटी तक नहीं है तब हमें एक्स्ट्रा शो करके ये बताना पड़ता है कि these values are not included, hence only these values are the part of solution set. 0, 1 and 2 are part of solution set. So I hope now I have made it clear that what is the significance of showing some extra values. Number 6, example 6. Same question को उठाते हैं। अब रियल नंबर अगर हमारा है तो हम कैसे करेंगे? You see, same, -3 less than equal to x less than 3 and x belongs to real numbers. रियल नंबर का वही तरीका है, ये तरीका है, डार्क करना पड़ता है, हमें डार्क करना पड़ता है। नंबर लाइन बना दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा वैल्यूज भी शो करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, मैंने 4 कर दिया, इधर करेंगे -1, -2, -3, नंबर लाइन थोड़ा छोटा पड़ रहा है इधर, मैं क्या करूंगा थोड़ा बड़ा कर दूंगा इसको, ठीक है, -3, -4 एंड दैट इज एनफ। मैं एक और शो कर देता हूं, -5। अब हमें शो करना है -3 एंड 3। नंबर लाइन पे -3 और 3 पे सर्कल्स बनाओ, वेरी इजी। -3 is included, so put a dark circle on -3. Dark circle on -3. तो ये हॉलो है, इसको हमने डार्क कर दिया, डार्क सर्कल ऑन -3। और 3 is not included, इक्वल टू साइन नहीं है, so hollow circle on 3. So all those values which are less than 3 but excluding 3, not 3. अब इसको हमें डार्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर हो गया, सिंपल। दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, वेरी सिंपल। So you see -3 is included, 3 is not included, and all values in between this range are the part of the solution set. Real number है तो हमने ऐसे शो किया। Next example.
सॉल्यूशन सेट अगर हमारा ऐसा दिया हुआ है, x such that -1 less than equal to x लेस देन इक्वल टू 4, दोनों तरफ इक्वल टू साइन भी है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. हाउ डू वी डू इट? नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, एंड हियर वी हैव टू शो डिस्क्रीट वैल्यूज बिकॉज ओनली नेचुरल नंबर्स हमें दिखाना है. तो वी कैन शो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इन रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म कैसे होगा? -1 इज इंक्लूडेड, यस, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूं, फिर मैं कुछ वैल्यूज को डिलीट करूंगा बिकॉज हमें सिर्फ नेचुरल नंबर्स लेना है. लेकिन मैं पहले सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज लिख रहा हूं. -1, फिर -1 के बाद 0, फिर 1 2 3 even 4 because it is also equal to 4. Now you see that only natural numbers have to be selected. So I will cancel all those numbers which are not natural numbers. Hence I have to only take 1 2 3 4. तो ये चीज हमें क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ सोल्यूशन सेट में 1 2 3 4 को शो करना है. I have to show also some extra values, but I will not put any dots on them. तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 and an extra 5 and one more extra 6. Either 0, -1, -2. This is enough. Space is there, so I am putting -3 also. I have to show a dark circle on 1. 1 is included, even on 2, even on 3, and also on 4. That's it. That's it. If the same question is replaced with x belongs to real numbers, ये सेम क्वेश्चन मैं इसको बनाता हूं, रियल नंबर है, तो फिर कैसे बनाएंगे? x -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर. देखो ये दोनों सेम ही है, लेकिन सिर्फ रिप्लेसमेंट सेट चेंज हो गया है. पिछले वाले में नेचुरल नंबर्स था, इसमें रियल नंबर्स. तो आई विल ड्रॉ द नंबर लाइन. I will mark all those values as I did it in the previous wala question. 0 1 2 3 4 5 6. यहां पे भी -1 -2 -3 कर दिया. I have to show starting from -1 till 4, and -1 is included because equal to sign is there. 4 is also included, equal to sign is there. So dark circles on -1 as well as on 4. And all those values which are lying between them, उनको तो हम ऐसे कर देंगे. ठीक है, very very simple. It means what? कि -1 is also included, 4 is also included, and all the values which are between them, the fractional values also, क्योंकि real numbers में every number that is in between them are present in the solution set. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बहुत सारी चीजें आज मैंने इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैंने बताया है तुम लोगों को. डार्क सर्कल, हॉलो सर्कल एंड डिस्क्रीट वैल्यूज को कैसे शो करते हैं, एंड रियल नंबर अगर है तो रियल नंबर्स को कैसे शो करते हैं. तो इस तरह से आज हमने काफी सारी चीजें सीखा. डोंट फॉरगेट देम बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी यूजिंग देम इन डूइंग सम क्वेश्चंस दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो आगे के क्लास के लिए अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो और आगे क्लास में हम लोग मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर एवरीवन.